Okay. We know that we know that variables has two types. We know that variable has two types. First is numeric variable and second is a string variable. सबको पता है कि वेरिएबल्स के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल एंड सेकेंड इज अ string variable. First is a numeric variable and second is a string variable. Okay, let us learn about one by one variable. Okay, तो अब हम one by one देखेंगे. Then first is a numeric variable. First is a numeric variable. Okay, it store only numeric value. It stores only numeric value. Numeric value में क्या store होगा? Only numeric value means numbers. Numeric variable में हम सिर्फ number store कर सकते हैं. Okay, it is declare as. Numeric variable आप कैसे declare करोगे? As a integer, as a long variable. Okay, first है integer and long variable. Integer value is declared by using percentage sign as the last character of the variable name. For example, how to declare the integer variable? First, you can type the variable name. Okay, now I am typing the variable name. And after that, you can type the percentage sign. You can type the percentage sign. आपको अगर इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप पहले वेरिएबल नेम लिखोगे और उसके बाद आपको क्या करना होगा? परसेंटेज साइन यूज करना होगा. ओके, दिस इज योर इंटीजर वेरिएबल. Okay, it is stored by 2 bytes ranging from -32,768 to plus 32,767. ओके, तो एक इंटीजर वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम? -32,768 टू प्लस 32,767. इतनी वैल्यू हम एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. दिस इज योर इंटीजर वेरिएबल. Then next is a long integer. Long integer is declared by using ampersand sign. This is your ampersand sign. Okay, this is your ampersand sign. Okay, then how to declare the long integer? For example, now I am writing the variable name and after that you can type the ampersand. Okay, जैसे ही आपने ऐसा डिक्लेयर किया तो कंपाइलर को समझेगा कि आपने लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है. ओके, it is stored in a 4 bytes ranging in values from -2147482648 plus 2147486647. इतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम एक लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल में. हम यहाँ पे जो दिया है ना -2147483648 प्लस 2147483647, इतनी वैल्यू हम एक लॉन्ग इंटीजर पे स्टोर कर सकते हैं. दिस इज योर इंटीजर एंड लॉन्ग वेरिएबल. ओके, I request you all kids, please write down. Okay, write down the notebook. Then next is a single precision variable. It is declared by using exclamation sign. It is default numeric value and its value be used without declaration. Okay, suppose you want to declare the single precision variable. Then how to declare? First you can type the variable name and after that you can type the exclamation mark. After that you type the exclamation mark. This is your
सिंगल प्रिसीजन वैल्यू। ओके, तो सिंगल प्रिसीजन वैल्यू वेरिएबल के बाद हमें वेरिएबल में कौन सा साइन यूज करना है? एक्सक्लेमेशन साइन। ओके, दिस इज योर सिंगल प्रिसीजन variable. Then next is a double precision variable. It is declared by using hash sign. It can also store number with decimal point. Okay. Double precision variable आप कैसे डिक्लेयर करोगे? First write your variable name and after that the hash sign. Okay, this is your double precision variable. Okay, आप कैसे डिक्लेयर करोगे डबल प्रिसीजन वेरिएबल? First you can type variable name and after that the hash sign. Okay, it can also store number with decimal point. और इसमें आप नंबर भी स्टोर कर सकते हैं और डेसिमल नंबर भी स्टोर कर सकते हो. ओके, then second type of variable is a string constant. Numeric variable is the first type of variable and string constant is the second type of variable. Okay, then let us learn about the string variable. It stores a string constant or alphanumeric data. The last character of a string must be $sign. Okay. Then how to declare the string variable? First you can write the variable name and after that is $sign. Okay, so string variable, suppose you want to declare the string variable, then first you can type the variable name and after that the $sign. ओके, आपको कौन सा साइन यूज करना है? $साइन यूज करना है. आपको ये साइन सब नोट डाउन करके रखो कि इंटीजर वेरिएबल में कौन सा साइन यूज करना है, लॉन्ग इंटीजर में कौन सा साइन यूज करना है, सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल में कौन सा साइन यूज करना है, डबल प्रिसीजन वैल्यू में कौन सा साइन यूज करना है. ओके, एंड स्ट्रिंग वेरिएबल में कौन सा साइन यूज करना है. दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द important while writing your QBasic program. Okay, string variable, it stores string constant और अल्फान्यूमेरिक डेटा. स्ट्रिंग वेरिएबल में आप स्ट्रिंग कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हो. ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट और अल्फान्यूमेरिक डेटा. ओके, मींस फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखो फॉर एग्जांपल नेम $साइन. दिस इज योर स्ट्रिंग वेरिएबल इक्वल टू, उसको हमने क्या पास, कौन सी वैल्यू पास की है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पास किया है हमने. डबल कोट में जो भी हम डबल कोट में लिखेंगे वो क्या हुआ आपका? स्ट्रिंग कांस्टेंट. ओके, then what is the difference between numeric variable and string variable? In numeric variable we assign numbers, that is integer, long integer. Okay, numeric variable में आप कौन से नंबर असाइन कर सकते हो? इंटीजर नंबर. ओके, वेयर एज स्ट्रिंग वेरिएबल assigns only string. ओके, स्ट्रिंग वेरिएबल में हम सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू यूज कर सकते हैं. ओके, देन सेकेंड डिफरेंस between numeric variable is it can be used in mathematical expression. numeric variable में हम mathematical expression use कर सकते हो. okay, whereas in string variable cannot use in a mathematical expression, but string variable में हम mathematical expression use नहीं कर सकते. okay, and last difference है in numeric variable no special character can be used. okay, न्यूमरिक कांस्टेंट में कौन सा भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होता. whereas string variable end with $sign. okay, string variable किससे एंड होता है? $साइन से. दिस इज योर स्पेशल सिंबल. आई होप एवरीवन इज क्लियर. देन मूविंग नेक्स्ट, your next element of QBasic is a operator. Your next element of QBasic is a operator. They are the symbols that performs operations on the operand.
It prefers to be a symbol which represents what type of operation has to be performed. What is an operator? Operators are symbols which performs arithmetical or logical operations. Okay, for example, A, sorry, for example, A plus B. प्लस साइन इज अ ऑपरेटर. ये क्या है आपका ऑपरेटर. एंड बी, ए एंड बी, दीज आर दी ऑपरेंड्स. ए एंड बी को हम क्या बोलेंगे ऑपरेंड्स. एंड प्लस साइन को हम बोलेंगे ऑपरेटर. ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. ऑपरेटर के कितने टाइप्स है? थ्री. फर्स्ट इज अ arithmetic operator, second is a relational operator, and third is a logical operation. Okay, let us learn about one by one operator. First is a arithmetic operator. First is a arithmetic operator. It performs mathematical calculation like addition, subtraction, multiplication, and division. Mod represents modular division. Okay, arithmetic operator में कौन से ऑपरेटर आएंगे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन. दिस ऑपरेटर कम्स इन अ अरिथमेटिक ऑपरेटर. ये ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ओके, इसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ओके, then next, relational operator. Then what is a relational operator? Relational operators which tells us relation between two operands. Relational operator means क्या? ऐसे ऑपरेटर जो टू ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन डिस्प्ले करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर. Okay, it is used to perform more than two values of same type, either numeric or string. The result of the operation may be either true and false. What is a relational operator? Operator which tells us relation between two operands. टू ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन शो करता है, उसे हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेशन. ओके, तो रिलेशनल ऑपरेशन में कौन से सिंबल आते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. ओके, देन इक्वल टू. दिस सिंबल्स कम्स इन द रिलेशनल ऑपरेटर. एंड रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू. हमेशा आपको याद रखना है, रिलेशनल ऑपरेटर आपको ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करेगा. ओके, रिलेशनल ऑपरेटर आपको ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करेगा. फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 5. ओके, देन ए इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू. ओके, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ट्रू. मींस रिलेशनल ऑपरेटर जब भी इन प्रोग्राम, रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स द वैल्यू ट्रू और फॉल्स. जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो रिलेशनल ऑपरेटर हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करते हैं? ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करते हैं. दिस इज योर रिलेशनल ऑपरेटर. Then next is a logical operator. It combines the result of two or more than two relational operator as a singles and gives either true and false. Example, and or not. Logical operator means क्या? Logical operator means compare expression. लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं? एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं. ओके, एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं. और लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं? एंड, और, एंड नॉट. These are the logical operator. And, or, and not. These are the logical operator. ये आपके क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर है.
and represents multiplication of two numbers. and लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? टू नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करता है, टू नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करता है. फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू b, a इक्वल टू b and sorry and b equal to c. This is your example. Okay, a value is 5, b value is 4, b value is 4, b value is 4 and c value is 2. ओके, a की वैल्यू कितनी है? 5, b की वैल्यू है 4 एंड c की वैल्यू है 2. और हमारा एक्सप्रेशन कौन सा है? a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c. ओके, whenever your program will be run, then a इक्वल टू कंपेयर करेगा 5 इक्वल टू 4, करेक्ट है. आंसर क्या आएगा? 5 इक्वल टू 4 फॉल्स. इसका आंसर आएगा फॉल्स. लॉजिकल ऑपरेटर भी हमें ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करते हैं. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स. देन एंड का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन टू नंबर्स. एंड क्या करता है? टू नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करता है. मींस फॉल्स इनटू b इक्वल टू c, मींस 4 इक्वल टू 2. 4 इक्वल टू 2 इक्वल है क्या दोनों भी? नो. अगेन ही रिटर्न्स दी फॉल्स. मींस फॉल्स इनटू फॉल्स, फॉल्स. इसका आंसर क्या आएगा? फिर फाइनली इसका आंसर क्या आएगा? हमें फॉल्स. ओके ओके, बट इन केस फर्स्ट वैल्यू, in case first value, suppose I am changing the value a equal to b and b equal to c. okay, suppose a की वैल्यू भी a की वैल्यू भी 5 है और b की भी 5 है. okay, means first operation is true and second operation is false. अगर दूसरा एक्सप्रेशन फॉल्स है तो उसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा. ओके, मल्टीप्लिकेशन जब होता है, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है और दूसरा एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आंसर हमेशा फॉल्स ही आता है. आपको ये ध्यान रखना है. फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू एंड देन सेकेंड एक्सप्रेशन इज फॉल्स, रिजल्ट विल बी फॉल्स. देन नेक्स्ट, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, second also true, result will be true. Third is first expression is false, second expression is true, result will be false. And both expressions will be false, answer will be false. Okay, ये आप नोट डाउन करके रखो. अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हुआ और दूसरा एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो मल्टीप्लीकेशन में आंसर फॉल्स ही आता है. अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है एंड सेकेंड एक्सप्रेशन भी ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू. थर्ड केस में फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है एंड सेकेंड एक्सप्रेशन ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा. एंड दोनों अगर फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा. ओके, दिस इज योर एंड ऑपरेटर. दिस इज योर एंड ऑपरेटर. ओके, देन नेक्स्ट इज द OR operator. OR logical operator represents addition of two numbers. Addition of two numbers. You remember that and means multiplication and or means addition. Okay. Again, I give the example a equal to b or b equal to c. Okay. A's value is 5, B's value 4, B's value 4 and C value equal to 2. C की वैल्यू है 2. Okay. If when program execute 5 equal to 4, answer will be false. Answer क्या आएगा आपका? false. और means क्या? एडिशन ऑफ टू नंबर्स. वो क्या करेगा? एडिशन करेगा. मींस प्लस. b इक्वल टू 4, p इक्वल टू c मींस 4 इक्वल टू 2, फॉल्स. तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स. ओके,
बट अगर इस केस में b की भी वैल्यू 5 है, b की भी वैल्यू अगर 5 है, मींस फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है प्लस सेकंड एक्सप्रेशन फॉल्स, देन वैल्यू इज ट्रू। ओके, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है और सेकंड एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। थर्ड केस में अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। ओके, एंड पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है और दूसरा एक्सप्रेशन ट्रू है तो भी आंसर ट्रू आएगा। ओके, मींस इस केस में अगर दोनों भी फॉल्स हुए तो ही फॉल्स मिलेगा, बट अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो उसका आंसर हमें ट्रू मिलेगा। दिस इज योर और ऑपरेटर। ओके, और ऑपरेटर क्या करता है? एडिशन करता है। ओके, वो कंडीशन चेक करेगा, मींस ये एक्सप्रेशन चेक करेगा कि 5 इक्वल टू 4 इक्वल है क्या? नो, देन यू रिटर्न दी फॉल्स। देन और क्या करेगा? प्लस दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करेगा और फिर ऐड करने के बाद वो हमें फाइनल रिजल्ट देगा। ओके, अभी इसका रिजल्ट क्या आएगा? a इक्वल टू फी बाई 5 इक्वल टू 5 ट्रू प्लस 5 इक्वल टू 2 नो, देन फॉल्स, देन फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू। ओके, तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। दिस इज योर और लॉजिकल ऑपरेटर। आई होप एवरीवन इज क्लियर। Then next is a not logical operator. Not represent just opposite to each other. That is, it returns true if the result is false. Okay. Not operator में क्या होता है? अगर आपका फाइनल आंसर ट्रू आया होगा, अगर आपका आंसर ट्रू एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू होगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा? आपको फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल, नॉट a equal to b. Okay, a equal to 5 and b equal to 4. Not a means 5 equal to 4 एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ओके, देन नॉट फॉल्स, देन फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? ट्रू। अगर दोनों भी सेम है, एक्सप्रेशन में दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर यहाँ पे ट्रू, एक्सप्रेशन का आंसर हमें ट्रू मिलेगा, बट फाइनल लॉजिकल ऑपरेटर के एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनल आंसर हमें फॉल्स आएगा। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर। दिस इज योर लॉजिकल ऑपरेटर। कौन से लॉजिकल ऑपरेटर? एंड, और, एंड नॉट। एंड इज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, or represents addition of two numbers, and not represent just opposite to each other. means अगर एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है तो फाइनल आंसर हमें फॉल्स मिलेगा। दिस इज योर लॉजिकल ऑपरेटर। देन नेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग ऑपरेटर। ओके, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ये भी ऑपरेटर्स का ही टाइप है। String operator. String operator joins more than two string data. Plus sign is used. Okay. The action of combining two string is called the concatenation. Okay. String constant. String operator. String operator. Okay. आपको पता है स्ट्रिंग वेरिएबल आप कैसे डिफाइन करते हो? नाउ आई एम राइटिंग ए प्रोग्राम, नाउ आई डिफाइन द स्ट्रिंग वेरिएबल, देन ए वेरिएबल नेम, देन डॉलर साइन। ओके, दिस इज योर स्ट्रिंग वेरिएबल। ओके, दिस इज योर स्ट्रिंग वेरिएबल, एंड नाउ आई एम डिक्लेयर द स्ट्रिंग कांस्टेंट hello. Okay, this is your string variable and this is your string constant. Okay, then next, again I am declaring the next string variable, hello world. Okay, then now in this case print a डॉलर प्लस, हमें क्या करना है? ये हेलो वर्ड, ये दोनों स्ट्रिंग
ज्वाइन करनी है, तो ज्वाइन करने के लिए हमें स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, और स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज करने के लिए हमें कौन सा साइन यूज करना पड़ता है? प्लस साइन, देन डबल कोट एंड देन बी डॉलर। ओके, इससे क्या होगा, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट वो रीड करेगा ए डॉलर इक्वल टू हेलो। ए डॉलर इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल एंड हेलो इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगेन due to next statement b dollar, again we know that b dollar is a string variable and word is a string constant. Then gives the next statement, can go to the next statement, print a dollar plus, प्लस साइन यूज किया हमने यहाँ पे प्लस साइन, तो वो तुरंत समझाएगा कि ये क्या है, आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर है। ये क्या है आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर, मींस टू स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट मींस जॉइन करने के लिए हम कौन सा साइन यूज करना पड़ता है? प्लस साइन। टू स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए हमें कौन सा स्ट्रिंग यूज करना पड़ता है? प्लस साइन। ओके, तो इसका फाइनली रिजल्ट जब भी प्रिंट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो हमें आंसर क्या मिलेगा? हेलो वर्ड, ऐसा हमें आंसर मिलेगा। दिस इज, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो हम क्या बोलते हैं? कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर मींस दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, उसे हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन, उसे हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ओके, then next element of QBasic is the expression. It is the combination of operator, constant and variable that evaluated to get a result. अभी आप बोलो कि एक्सप्रेशन में, कब से आपको बोल रही हूँ एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू आएगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू आएगा। तो एक्सप्रेशन मीन क्या है? फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू ए प्लस बी एंड बी इक्वल टू सी। तो एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं। दिस इज योर एक्सप्रेशन। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी, दिस इज योर एक्सप्रेशन। इसे हम बोलेंगे एक्सप्रेशन, इसे हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। ओके, तो ऑपरेटर्स के फोर टाइप्स हैं। फर्स्ट इज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड फोर्थ इज अ स्ट्रिंग ऑपरेटर और कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन मींस क्या? ज्वाइन दी टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते ज्वाइन करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? स्ट्रिंग ऑपरेटर। ओके, okay, I hope everyone is clear.